बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स का मुताला कर रहे हैं कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के मुकाबले में यूज़ की जा सकती हैं। आज हम जिस कॉग्निटिव टेक्निक को देखेंगे उसको कहते हैं द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक। ये अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। व्हेन वी आर डिस्ट्रेस्ड वी टेंड टू लैंड ऑन वन सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट हैपेंड एंड वी ट्रीट दैट एक्सप्लेनेशन एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। मिसाल के तौर पर, शी डिडंट रिप्लाई बिकॉज शी इज़ एंग्री विद मी। They moved me out of that project because I'm not good enough. My son was quiet at dinner because he's losing respect for me. The intervention is to pause and deliberately generate 2, 3 other possible explanations for the same event that are still realistic but less catastrophic, less self-blaming or less blaming of others. जो भी वाक़या हुआ है उसको लेकर, तो बजाय इसके कि जो एक्सप्लेनेशन हमारे ज़हन में पहली दफ़ा आई है उस वाक़े की और जिसने हमें डिस्टर्ब कर दिया है, हम उसके बरक्स कुछ 2-3 एक्सप्लेनेशंस डेवलप करेंगे जो कि उससे कम कैटास्ट्रॉफिक हों। क्या और कोई वजह हो सकती है इसकी, जो कोई वाक़या हुआ है उसकी, कि जो मेरे लिए ज़्यादा इतनी डिस्टर्बिंग ना हो जितनी कि ये इमीडिएटली आने वाली थॉट है। उसको हम जनरेट करके, तो लेट अस ट्राई टू कंसिडर दैट, बिकॉज ये भी मेरी ही एक्सप्लेनेशन है। इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू बिलीव द नाइसर एक्सप्लेनेशन, यू आर रिमाइंडिंग योर माइंड माई फर्स्ट स्टोरी इज़ नॉट नेसेसरली द स्टोरी, दिस वीकन्स द डिस्ट्रॉशन। वाई डज इट वर्क, इसको भी देखते हैं। Most cognitive distortions rely on overconfidence in a single interpretation. मिसाल के तौर पर माइंड रीडिंग, I know what they are thinking. Personalizing, this happened because of me. Catastrophizing, जिसको magnifying भी कहते हैं, this will end badly. Labeling, I'm a failure, that's the explanation for everything. By generating alternative explanations, what you're doing is challenging mind reading. I can't actually know their internal state without evidence. Loosening emotional certainty, I feel ashamed, but feeling is not equal to fact. Bringing back proportionality, maybe it's not a disaster, maybe it's just, Tuesday. मतलब ये है कि ये कोई ऐसी एक अनोखी बात नहीं हुई है, एक एवरीडे हैपनिंग है कि जो किसी भी दिन हो सकती है, और इसको हमें बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इतना ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइज नहीं करना चाहिए। इसको भी याद रखें कि व्हेन सर्टेनिटी डिक्रीजेज, द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन आल्सो डिक्रीजेज। अब इसको हम देखेंगे कि हाउ टू डू इट, इसके स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि डिस्क्राइब द इवेंट इन प्लेन फैक्चुअल टर्म्स, what actually happened without interpretation. Example would be, I sent her a message at 9 a.m. By 5 p.m. there was still no reply. Notice you're not allowed to add she's ignoring me yet. That's already a story. Step number 2 ये है कि write the automatic explanation. आपके ज़हन में जो खुद से पैदा हो गई explanation वो क्या है? What did I instantly assume? She's upset with me. I must have said something wrong yesterday. This is the thought that is creating the emotion. Step number 3 ये है कि force yourself to generate at least 2 possible alternative explanations. Important rules for this step. Number 1, they must be plausible, not fantasy. They can include neutral or even positive angles. They do not have to make you feel good. They just have to show that more than one story is possible. इसकी examples क्या हो सकती हैं? She might be in meetings or overwhelmed and hasn't checked personal messages. She read it and plans to answer properly later instead of giving a rushed response. Her phone might be on silent or battery dead. She is emotionally drained today and it's not about me. कोई और वजह भी हो सकती है. It's not about me. Step number 4 ये कि ask what if one of these explanations were true. Evaluate which explanation fits the evidence better. Not what feels true, but what is more rational. This is where the shift is most likely to occur. You're training emotional flexibility. आप अपने अंदर इसके ज़रिए से emotional flexibility भी पैदा करते हैं. Step number 5 ये है कि choose a balanced replacement thought. Something which is a realistic possibility, not idealistic. इसको देखते हैं कि इसको जर्नल कैसे करना है.
इसमें सबसे पहली चीज़ सिचुएशन को बयान किया जाए। अ कॉलीग वॉकड पास्ट मी इन द हॉलवे एंड डिडंट रिस्पॉन्ड टू माय सलाम फॉर इंस्टेंस। नंबर 2 ये कि ऑटोमेटिक थॉट क्या है, ही इज़ अपसेट विद मी और थिंक्स आई एम नॉट वर्थ एक्नॉलेजिंग। नंबर 3 ये कि इमोशन क्या है, हर्ट 5/10, डाउट 4/10। नंबर 4 आपने इसकी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जनरेट करनी है, 3 ऑप्शंस आपने डेवलप करनी है कम से कम। नंबर 1 ये कि शी माइट नॉट हैव हर्ड मी। नंबर 2 ये कि शी मे हैव बीन प्री ऑक्यूपाइड और स्ट्रेस्ड। नंबर 3 ये कि शी मे बी वेयरिंग ईयरफोन्स और लॉस्ट इन थॉट। फिर हमने एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट ईच ये देखना है। नंबर 1 is she often seems absorbed in work and doesn't always notice greetings. Last week she was perfectly polite and friendly. I did say salam softly, maybe she genuinely didn't hear. Balanced thought क्या develop होती है इसके नतीजे में कि it's likely she didn't notice, I'll greet her again warmly next time. और new emotion insight क्या है, I feel calm, I feel respectful curiosity instead of taking it personally. इसको देखते हैं कि अप्रोच क्यों पॉपुलर है अमंग थेरेपिस्ट्स। सबसे पहली वजह ये कि इट हेल्प ब्रेक इमोशनल रीजनिंग, आई फील इट, इट मस्ट बी ट्रू। दूसरी वजह ये कि इट बिल्ड्स कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी वजह ये है कि इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग। चौथी वजह ये कि इट इनकरेजेस फेयरनेस इन इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। ये हमारी तीसरी कॉग्निटिव टेक्निक है, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक, कि जिसको हमने आज देखा। नेक्स्ट वीक हम एक नई टेक्निक के साथ मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।